علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس ظالم نے اعلان کیا جو مسلم ابن عقیل کے بچوں کو پکڑ کر کے لائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ لوگ دولت کی لالچ میں ان کے بچوں کو تلاشنے لگے۔ ادھر قاضی شریح تک بھی یہ بات پہنچی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کے بچے محمد و ابراہیم کو قید کا اعلان کر دیا ہے اور انعام کی لالچ بھی دے دیا ہے۔ قاضی شریح سمجھ گئے اب تو ان کے بچوں کو بھی پکڑ لیا جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ قاضی شریح اپنے گھر گئے اور گھر جا کر کے دونوں بچوں کو بلایا اور بچوں کو پیار کرنے لگے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ دونوں بچوں نے جب قاضی شریح کو دیکھا وہ اس قدر ہم سے پیار کرتے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، جیسے بے یاروں مددگار سے کیا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا قاضی صاحب کیا بات ہے، آپ ہم سے اس قدر پیار کر رہے ہیں، ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ قاضی شریح نے فرمایا میرے بچوں میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتا تھا مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ظالم عبید اللہ ابن زیاد نے تمہارے والد حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا محمد و ابراہیم دونوں گلے لگ گئے اور خوب رویا اور کہا یا بتاؤ اے ابو جان، یا ابو جان آپ ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ بچے رونے لگے۔ قاضی شریح نے کہا بچوں یہ رونے کا وقت نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش میں نکل چکے ہیں، کہیں اگر ان کو خبر ہو گئی کہ تم میرے گھر ہو وہ تمہیں پکڑ کر کے قاضی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد آپ کو تکلیف دے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت قاضی شریح آپ نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور اسد سے کہا میرے بیٹے اسد تم ان دونوں بچوں کو لو اور ایک قافلہ جو کوفہ کی سرزمین سے گزرتا ہوا اس قریب کے جنگل سے گزرتا ہوا جانے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ وہ قافلہ مدینہ جا رہا ہے، ان بچوں کو اسی قافلے سے ملا دو۔ اور قاضی شریح نے ان بچوں سے کہا میرے بیٹو اگر تم سے کوئی پوچھے گا کس کے بچے ہو تو تم کبھی نہ بتانا کہ تم مسلم ابن عقیل کے بچے ہو۔ وہ بچوں کو لے کر کے جناب اسد لے کر کے گئے اور دیکھا کہ وہ قافلہ نکل چکا ہے، گرد محسوس ہو رہے تھے۔ آپ نے بچوں سے کہا اے بچوں یہ قافلہ ابھی روانہ ہوا ہے، گرد اڑ رہے ہیں، تم دوڑتے جاؤ، چونکہ یہ قافلہ اونٹوں کا ہے، بہت تیز تو نہ چلے گا، تم ان کا ساتھ پکڑ لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر بھی 6 اور 8 سال بتائی جاتی ہے، یہ عمر کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، 8 یا 10 سال، 6 یا 8 سال، دو روایتیں ہیں، اسی درمیان ان دونوں بچوں کی عمر تھی۔ بچے ننگے پاؤں کوفہ کی سرزمین سے جنگلوں کا راستہ طے کرتے ہوئے قافلے کا ساتھ پکڑنا چاہتے ہیں مگر قافلے کے لوگ رات کی تاریکی کو دیکھتے ہوئے اپنے اونٹوں کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں۔ بچے قافلہ کا ساتھ پکڑنا چاہتے تھے کہ اونٹوں کی رفتار بڑھ گئی اور قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں یہ بچے اس کوفہ کے جنگل میں چل رہے ہیں، پتوں کے کھڑکنے کی آواز آتی، بچے ڈر جاتے۔ لوگوں آج ہم اور آپ اگر رات کی تاریکی میں اپنی پرسنل گاڑی سے چلیں اور ایک تنہا ہو تو خوف کا یہ عالم ہوتا ہے، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں کوئی پیچھے سے نہ حملہ کر دے، کہیں کوئی آگے سے نہ حملہ کر دے۔ اگر 2 لوگ ہوں تو بھی گارنٹی نہیں، ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ جبکہ ہم جوان ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بہادر ہیں، اس کے باوجود آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ جگہ جگہ مکانات نظر آتے ہیں، جگہ جگہ بہتر روڈ نظر آتے ہیں، جگہ جگہ محکمہ کے انتظامات نظر آتے ہیں، جگہ جگہ پولیس موجود رہتی ہے، اس کے باوجود اگر آج کی رات میں تنہا تاریکی میں ہمیں سفر کرنا ہو تو ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ ذرا ان بچوں سے پوچھو، نہ لائٹ اور روشنی کا دور تھا،
न उस दौर में जंगलों में मकानात बनाए जाते थे, न उस दौर में जंगलों में बसेरा किया जाता था। जंगल में बस वही जंगली जानवर, जंगलों में बस वही बकरियों को चराने के लिए अड्डा बनाया जाता था और जंगलों में कुछ न रहा करता था। वो दोनों बच्चे रात की तारीकी में जंगल में सफर करते हैं। दर हवाओं की वजह से दरख्त की टहनियां एक दूसरे से टकराती, बच्चे डर जाते। पूरी रात ये छोटे छोटे बच्चे जंगल का सफर करते रहे। सुबह हुई तो क्या देखा, दारुल इमारत की बिल्डिंग नजर आ रही है, इसलिए कि बच्चों को रास्ता तो मालूम न था, बस वो चल रहे थे तवक्कल तो अल्लाह। हालात ने उन्हें चलने पर मजबूर कर दिया था। कौन से थे ये बच्चे जो नाज़ो निअम में पाले गए थे, जिन बच्चों को गोद में खिलाया गया था, जिन बच्चों को लाड से प्यार किया गया था, जिन बच्चों से लोग इस कदर मोहब्बत करते थे कि अगर इन्हें जमीन पे चलते देखते तो कोई ना कोई मुहब्बे अहले बैत अगर गुजरता तो उठा लेता, प्यार करता और बच्चों को चूमा करता था। आज वो बच्चे जो लाडो प्यार की जिंदगी गुजार चुके थे, जो लोगों के दरमियान रह चुके थे, जो मोहब्बत के गहवारे में पल चुके थे, रात की तारीकी के सफर के बाद सुबह को दारुल इमारत का दरवाजा, दारुल इमारत की बिल्डिंग नजर आई। उन बच्चों के पास दो सिपाही पहुंचे और पूछा, बच्चों तुम कौन हो? बच्चों ने सोचा हम तो शायद लंबा सफर कर लिए, अगरचे ये बिल्डिंग नजर आ रही है। बच्चे रात की तकलीफ और थकावट की वजह से ये बात भूल गए थे कि काजी शुरैह ने कहा था अपने वालिद का नाम मत बताना। अंदाज में कह दिया हम हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के साहबजादे हैं। उन दोनों सिपाहियों ने बच्चों को पकड़ लिया और पकड़ करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। अब जब ये दोनों बच्चे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचे, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने दोनों बच्चों को मशकूर नामा दरोगा जो उस जेल का दरोगा था उसके हवाले कर दिया और कहा इन बच्चों को जेल में रखो, मैं यजीद को लिख देता हूँ कि मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों को जिंदा या फिर इनके गर्दन को भेजूं, यानी इन्हें कत्ल करके इनके गर्दन को भेजूं। जैसा यजीद की तरफ से हुक्म होगा उसी पर अमल करूंगा। अल्लाह अकबर। इन दोनों बच्चों को कैद कर दिया गया। अब उस वो दारोगा जो जेल का दारोगा था मशकूर नामी, वो मोहब्बत अहले बैत अपने दिल में रखा था। इमाम हुसैन के खानदान से मोहब्बत करने वाला था। हर कूफा की सरजमीन पर बेवफा नहीं थे, यकीनन हर कूफी बेवफा नहीं थे, मगर अक्सर कूफी बेवफा हो चुके थे। वो मशकूर नामी कूफी जो मोहब्बत अहले बैत अपने दिल में रखा था, उसने रात की तारीकी में दोनों बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिला करके अपनी अंगूठी उतार करके बच्चों के हाथ में दिया और कहा मेरे बच्चों तुम इस अंगूठी को लो और कादिसिया की सरजमीन पर चले जाओ, मेरा भाई वहां रहता है, ये अंगूठी उसे दिखा देना, वो अंगूठी देखकर समझ जाएगा और बता देना कि मैंने आपको भेजा है, वो आपको बहिफाजत व सलामती आपको मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा देगा। ये बात कह करके मशकूर नामी दारोगा ने अंगूठी दी और तीसरी रात के तारीकी में दोनों बच्चों को जेल से निकाला और निकाल करके कुछ दूर तक पहुंचा दिया और कहा ये रास्ता कादिसिया की सरजमीन पर जाता है। वो बच्चे अंगूठी लिए और रात भर सफर करते रहे। सफर करते करते कादिसिया के रास्ते पे बज़ाहिर चल रहे थे, मगर रात के अंदर उन बच्चों को पता न चल सका कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। वो इस उम्मीद से थे कि हम तो कादिसिया की सरजमीन पर जा रहे हैं, मगर तकदीर पर गालिब रहा करती है। तकदीर हमेशा तदबीर पे गालिब रहती है। इंसान तदबीर अपनाता है, मगर अगर मर्ज़ी मौला है तो इंसान की तदबीर कुछ काम नहीं करती है। बच्चे कोशिश कर रहे थे हम कादिसिया की सरजमीन पर पहुंच जाएंगे, मगर किस्मत ने उनको कादिसिया न पहुंचने दिया। बच्चे एक दरिया के एक नहर के करीब देखे, एक दरख्त है और दरख्त की खो बनी हुई है, उस खो में दोनों बच्चे छुप गए। एक औरत आई और नहर से पानी लेने लगी। उसने नहर में देखा दो बच्चों का अक्स नजर आ रहा है। वो पलट कर
के पीछे देखी तो दो बच्चे दरख्त की खो में बैठे हुए थे। उस औरत ने जब दोनों बच्चों को देखा, वो बच्चों के चेहरे की नूरानियत को देख करके औरत ने महसूस कर लिया जरूर ये किसी आला खानदान के बच्चे हैं। वो औरत उन बच्चों के करीब गई और करीब जाकर के कहा, मेरे लालो तुम किसके बेटे हो? तुम आखिर पेड़ की खो में क्यों बैठे हो? इन जानवरों के बसेरे से तुम बाहर आ जाओ, ईजा देने वाले जानवर इसमें छुपे रहते हैं। कहीं सांप और बिच्छू के बसेरे से तुम बाहर आ जाओ, कहीं सांप और बिच्छू तुम्हें तकलीफ ना दे दें। दोनों बच्चों ने जब उस औरत के मोहब्बत भरे जुमले को सुने, खो से बाहर आए। औरत ने कहा, बाबू तुम्हारा मेरी कनीज तुम्हारी देखभाल करेगी, तुमसे प्यार करेगी, तुमसे मोहब्बत करेगी। दोनों बच्चों को लेकर के वो नौकरानी कनीज नौकरानी जो कनीज थी वो अपने मालिकन के पास गई और कहा, मालिकन तुम्हारी किस्मत के बारे न्यारे, तुम बड़ी खुश नसीब हो। कहा, क्या मामला है? कहा, नहर से पानी भी लाई हूँ और अहले बैत अतहार से तो फूल लेकर के आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस कनीज ने ये बात कही, वो मुहिब अहले बैत थी उसकी मालिकन, तो उसकी मालिकन ने कहा, जब तुम अहले बैत के दो फूल लेकर के आई हो तो जाओ मैं तुम्हें आजाद करूं। देखा अहले बैत की मोहब्बत। कब तक वो कनीज थी, गुलाम थी, वो किसी की बांदी थी, वो कनीज थी कनीज, मगर मोहब्बत अहले बैत ने उसे आजाद कर दिया। हम भी अगर मोहब्बत अहले बैत हुए तो इंशाअल्लाह हम जहन्नम से आजाद होंगे और जन्नत हमारा ठिकाना बन जाएगा। उस कनीज ने उन बच्चों को उनके हवाले किया। उस औरत ने बच्चों को नहलाया, उम्दा लिबास पहनाया और पहना करके उस मालिकन ने दोनों बच्चों को एक कमरे में लिटा दिया, खाना खिलाई और खाना खिलाने के बाद उन्हें लिटा दिया और कमरे के दरवाजे में ताला लगा दिया। उस जमाने का ताला मैं अब मिसाल नहीं दे सकता, बस इतना समझें, वो उस जमाने की कड़ी होती थी जिसको एक दूसरे में पिटा करके मोड़ दिया जाता था। ताला लगा दिया। दोनों बच्चे उस रूम में खाना खाने के बाद चूंकि नहा भी चुके थे, दिन की तकरार की वजह से थके हुए थे, दोनों बच्चे रात में नींद में इस कदर डूब गए कि रात में बच्चों ने ख्वाब में अब्बा को देखा और इधर उस औरत का शौहर हारिस आ गया। हारिस घर में आया, औरत ने कहा, घोड़ा क्या किए? हारिस ने कहा, घोड़ा मर गया, लाओ जल्दी खाना लाओ, बात ज्यादा मत करो, कल फिर मुझे सफर करना है। औरत ने कहा, क्या मामला है? हारिस ने कहा, मुस्लिम इब्ने अकील के दो बच्चे हैं और वो दारोगा, मशकूर नामी दारोगा ने जेल से रिहा कर दिया है। दोनों बच्चों को पकड़ने का इनाम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने रखा है कि जो उन बच्चों को पकड़ करके लाएगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। फिर कल सुबह मुझे उन बच्चों की तलाश में निकलना है, लाओ जल्द से जल्द खाना दो। औरत खाना दी और वो खाने में मशगूल हो गया। औरत ने उससे कहा, अरे मेरे शौहर नामदार, वो दोनों बच्चे अहले बैत अतहार से हैं, वो दोनों बच्चे इमाम अली मकाम के खानदान के हैं, वो दोनों बच्चे अभी यतीम हो चुके हैं। उन बच्चों को पकड़ करके तुम बजाय दौलत तो कमा लोगे मगर वो दौलत तुम्हें फायदा ना पहुंचाएगी। तुम जरा दिल में मोहब्बत अहले बैत रखो। ये बात उस औरत ने जब अपने शौहर से कहा, शौहर मोहब्बत में ये बात सुना जरूर मगर दौलत की लालच में था कि यकायक खाना खाने के बाद उसके कान में आवाज बच्चों के रोने की पहुंची। बच्चों के रोने की आवाज सुन करके उस हारिस ने अपने बीवी से कहा, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? उसकी बीवी ने कहा, पड़ोस में कोई बच्चा होगा जो रो रहा होगा। हारिस ने कहा, इस तरह की आवाज तो मैंने कभी नहीं सुना, आज इस तरह की आवाज आ रही है। हारिस को महसूस हुआ जरूर मेरी बीवी झूठ बोल रही है। हारिस जालिम उठा और अपने मकान के उस कमरे में गया जहां दोनों बच्चे रात में
नींद में डूबे हुए थे और ख्वाब में अपने वालिद मोहतरम को देख रहे थे। उनके वालिद ने कहा, बेटो मैं तुमको छोड़ करके चला आया हूँ। बेटों को महसूस हुआ होगा बाबा मुझे छोड़ के चले गए। बच्चे अपने अब्बू को याद करके रो रहे थे। बाबा ने कहा, बेटो अनकरीब तुम भी मिलने वाले हो। इसी ख्याल में, इसी याद में, इसी नींद के ख्वाब की वजह से बच्चों के मुंह से रोने की तेज आवाज निकली। हारिस कमरे में दाखिल हुआ, बच्चों को रोता देख करके जब कमरे में दाखिल हुआ, बच्चों के जुल्फ पकड़ करके बाहर लाया। वो जुल्फे मुबारक जिसको तेल लगा करके झाड़ा जाता था, जिसको सहलाया जाता था, जिस बालों से प्यार किया जाता था, जो चेहरे पे जब झाड़े जाते थे ऐसा न लगता था जैसे रात में चांदनी चमक रही हो। चेहरा इस कदर बच्चों का चमकता था। जालिम ने दोनों बच्चों के जुल्फों को पकड़ा और पकड़ करके जालिम ने बच्चों को बाहर लाया और कहा, तुम दोनों मेरे घर आओ। और तुम्हारी तलाश में मैं चलता रहा, यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी मर गया और मैं भी तकलीफ का शिकार हो गया। सुबह के वक्त हारिस ने सोचा, अब इन बच्चों को लेकर के अगर मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो रास्ते में कोई छुड़ा ले और मैं इनाम ना पाऊं, इनाम से मैं महरूम हो जाऊं। उस जालिम ने कहा, अगर मैं जिंदा ले जाऊंगा तो कहीं कोई छुड़ा लेगा तो फिर मैं इनाम ना पाऊंगा। उसने दौलत की लालच में दोनों बच्चों को कत्ल के इरादे से बाहर लाया और तलवार निकाला। दोनों बच्चों को कत्ल के इरादे से तलवार हवा में लहराया। उसकी औरत ने जब देखा मेरा शौहर बच्चों को कत्ल करना चाहता है, दौड़ी दौड़ी शौहर के पास आई। शौहर से अब उन बच्चों को बचाने लगी। शौहर ने अपने बीवी के ऊपर तलवार से वार किया, तलवार का जख्म खाई, औरत गिरी और बेहोश हो गई। फिर उस हारिस का बेटा भी आया। बेटे अपने बेटे को भी दौलत की लालच में हारिस ने कत्ल कर दिया। वो मारना नहीं चाहता था मगर दौलत की हवस में था। वो बचाने के चक्कर में तलवार का वार कर दिया। उसका बेटा भी कत्ल हो शहीद हो गया। मैं ये कहूंगा कि अहले बैत अतहार के इन दो बच्चों को बचाने के लिए वो बच्चा आया था, इसलिए मैं उसे शहीद कहता हूँ। वो बच्चा भी शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। हारिस ने जब देखा मेरा बेटा चला गया, मेरी बीवी बेहोश हो गई, अब देखा कोई इसको बचाने वाला नहीं, तलवार निकाला और हमला करना चाहा। बीवी को होश आया, पलट करके आई और उसका हाथ पकड़ ली और कहा, अरे सैयद है, सैयद है, तमाचा ना लगा। अरे सैयद है, सैयद है, तमाचा ना लगा। कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा। ले ले अब ये जमीन हिली जाती है, ले ले अब ये जमीन हिली जाती है। फातिमा तुम्हें गमगीन नजर आती है, फातिमा हमें गमगीन नजर आती है। सालिम ने फिर अपनी औरत को धक्का दिया और सर में चोट आई, औरत बेहोश हो गई। दोनों बच्चों पे